and the whole session is going to be chaired by our eminent academician, Dr. Uma Shankar Pandey. So let me introduce him. He is the principal, School of Open Learning, and officer on special duty, OSD, Campus of Open Learning, University of Delhi. He has a 29 years of teaching experience in the field of computer science, besides supervising research scholars in the field of mobile commerce, artificial intelligence, expert system, data warehouse, etc. He has also delivered more than 50 online live lectures in different areas of computer science at CEC UGC Vyas channel, which are available at YouTube. He was also coordinator of IGNOU Study Center. He is also an editor of Indian Journal of Mathematical and Computer Sciences. We are highly privileged to have you, sir. Now over Thank to you. you. Thank Over to you. you, sir, Dr. Pandey, sir. Thank you, Rahul, and thank you very much, Deepak, for organizing this kind of seminar, really, which is the need of an hour. Only just a simple request just before starting to all participants, please mute yourself so that easily things can be conducted. That is the main objective. Now, as Rahul has already mentioned about the previous activity what Guhar is doing, I think today's topic is very much relevant. And again, I am putting, as Rahul is mentioning here, we are just using the technology. Just imagine it is also the impact of that kind of scenario that even from a person from a long distance, easily we are conducting a meeting, a seminar in a very fruitful manner. More than 100, I think at the moment 168 people, more than that have already joined. So when you organize the physically, it requires a lot of activity. लेकिन इस समय आप सारी चीजें ज्वाइन कर पा रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है. और आप देखिए कि हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग इम्पैक्ट. So let us, our good speakers are there, but some of the points which I would like to mention here before you in this socio-economic, जो आपका आर्थिक opportunity and challenges के बारे में है, just mention, let us start with a very small thing. Government has given, many economics people already, government has proposed a budget of 8,000 crore rupees in the area of biotechnology in the previous budget. Till now, government have not done anything. But surprisingly, you will be surprised to know, in this lockdown period, जब सब कुछ बंद है, हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री ऑलरेडी 7,500 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है. And just how it happens within a very small thing I would like to explain you. We are associated with the IITs. Our educational institutions are helping a lot. Especially, we'd like to congratulate the IIT Kanpur and IIT Delhi. They are doing too much about this COVID-19. आपको शायद अच्छी तरीके से पता होगा, अगर न्यूज़पेपर में आईआईटी की वेबसाइट पर जाइए, N95 मास्क जो इंडिया में बनता ही नहीं था, IIT Delhi has come up with that. और उनका टाई अप ऑलरेडी इंडस्ट्री से हो चुका है. और नाउ आपने सुना होगा अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs masks or more than that, or every day is going to be prepared in India. और जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी कास्ट भी जो हमारे पास प्रोडक्ट बाहर से आते थे, चाइना से आते थे, उनसे भी कम है. एंड द क्वालिटी इज टोटली प्योरली इंडियनाइज. अभी हम इसको मैनुअल तरीके से काफी कुछ कर रहे हैं, नॉट दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. Second thing about the different kits which is being used in COVID, that also have been developed by the IITs, and already they have coordinated with the industry to develop those things, and the cost of those kits are also very less. थर्ड थिंग अबाउट दिस वेंटिलेटर, आपको शायद पता है कब सबसे ज्यादा जरूरत इसमें वेंटिलेटर्स की है, किट्स की है, टेस्टिंग की किट्स की है, मास्क की है. ये सभी आईआईटीज के द्वारा पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर कर करके अब इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप होकर प्रोडक्शन बहुत तेजी से शुरू हो चुका है. मैं आपको सिर्फ इसको इस परिदेश में बताना चाहता हूं कि आप देखिए इंडस्ट्री और इनके कोलैबोरेशन से
लगभग 7,500 करोड़ का ऑलरेडी इकोनॉमिक बिजनेस शुरू हो चुका है। इट्स नॉट इन आवर कंट्री, सिर्फ हमें अपने देश के लिए, हम दूसरे देशों को भी निर्यात करना शुरू कर चुके हैं। और काफी कुछ चीजें जैसे आपने सुना होगा मेडिसिन के बारे में एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वी आर रियली अप्रिशिएटिंग कि इस समय ऐसी सिचुएशन में, लॉकडाउन में, जब काफी कुछ चीजें बंद है और जिस हम आत्मनिर्भर भारत की जिसकी बात करने जा रहे हैं, उसमें ये बहुत छोटा सा कदम जिसको हम बता रहे हैं, विच बायोटेक्नोलॉजी इज प्लेइंग। तो आप सोचिए कि कोविड-19 के इस बीच में बहुत सारी चीजें नुकसान हो रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। हमारे इकोनॉमिक्स के और भी जो पैनलिस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, वो आपको और पहलू पर बताएंगे। बहुत और चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन एक जो चीजें आ रही हैं कि आप कुछ और चीजों के बारे में, इसके अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना शुरू कर दिए। आप देखिए आज ये टेक्नोलॉजी का ही डेवलपमेंट है। लगभग विश्व के सारे विश्वविद्यालय, सिर्फ इंडिया के नहीं, क्योंकि ये महामारी लगभग 213 कुल 212 से 13 देशों में फैली हुई, शायद ही कोई ऐसी जगह बची होगी जहां इस महामारी का प्रकोप नहीं। इसके बावजूद भी विश्वविद्यालयों में, चाहे आप इसको फोर्सफुली कहिए, चाहे किसी भी रीजन से कहिए, लगभग कोई ना कोई माध्यम एक शिक्षा के लिए भी, ये ऑनलाइन या जो भी और माध्यम निकल सकता है उसके थ्रू आप कर रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट इस चीज का है, तो सोशल इम्पैक्ट इसका में। तीसरी बहुत चीजें हमारे और स्पीकर्स इस पहलू पर भी शायद अपने विचार रखेंगे। आप देखिए पहली बार शायद लोगों को ऐसा लगा है, क्योंकि हमने तो अभी तक अपनी जिंदगी में, इस लाइफ में नहीं ऐसा सोचा, लोगों को लगने लगा है कि कभी आपने सोचा था कि रेलवे बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के सारे साधन बंद हो जाएंगे, आपके पास सब कुछ होते हुए भी, आप कितने भी बड़े महान हैं, अगर प्राइवेट चॉपर्स भी हैं उसके मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी स्थिति से उभरने के तरीके भी लोगों को पता लगने लगे, लोग गांव की वैल्यू समझने लगे हैं। आज देखिए बहुत सारे मजदूर, करोड़ों की संख्या में लोग अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, और शायद अगर उनको वहां पे किसी भी तरीके की रोजगार का व्यवस्था हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो शायद एक नए भारत का निर्माण होगा इस सोशियो इकोनॉमिक की परवरिश में। तो मैं जानता हूं आप हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स, डॉक्टर सुधांशु हैं, धनी है, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदीप जी हैं, हम आप इनको सुनेंगे और हम चाहेंगे कि आप लगभग 15 मिनट हम इनको एक एक स्पीकर्स को टाइम देंगे, और हम चाहेंगे कि आपका ये सेमिनार बहुत ही इंटरेक्टिव हो, क्योंकि इजीली आप सब लोग जुड़े हुए हैं, तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा, जो भी प्रश्न है, इससे उत्थित हो सकते हैं। क्योंकि हमारा क्षेत्र टेक्नोलॉजी का बहुत है, तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आपके इस सोशियो इकोनॉमिक के संदर्भ में। उदाहरण के तौर पर आपको पता है आईटी इंडस्ट्री जो इस समय बैकबोन है पूरे भारत देश में, $500 बिलियन से भी ज्यादा उसका अपना व्यापार का योगदान है पूरे विश्व में, उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने पा रही है, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के कारण। कहना ये चाहता हूं कि इस देश में बैंडविड्थ की प्रॉब्लम भी लगभग, आज देखिए आप सभी लोग इंटरनेट के द्वारा जुड़े हुए हैं, ऐसे सारे देश में आज अच्छी खासी वाईफाई एंड बैंडविड्थ की प्रॉपर स्पीड के कारण सभी आईटी इंडस्ट्री के लोग घर बैठे काम कर रहे हैं, और शायद जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है उनका आउटपुट जो ऑफिस में जाके काम करते हैं उससे भी अच्छी आ रही है। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो लॉकडाउन में उनका बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। और तीसरी आईटी के सपोर्ट से आप देखिए आज ये अपनी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरीके की बात बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में पहले जहां हम दिन में 2 या 4 मीटिंगें कर पाते, आजकल सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक हर 2 घंटे पर इजीली मीटिंग होती है। और तीसरी, अब पहले कुछ बहाने निकल आते थे कि मैं इस मीटिंग हूँ, मैं इस मीटिंग वहां जा पा रहा हूँ, अब चूंकि हर लोग अवेलेबल हैं कहीं ना कहीं, इजिली सभी मीटिंग का बहुत अच्छी तरीके से संचालन भी हो रहा है। तो एक अलग भी प्रदेश उभर कर आ रहा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि इसका क्या इम्पैक्ट इस तरीके से आगे आएगा, क्योंकि कोविड के बाद की बहुत बड़ी समस्याएं शुरू होने वाली हैं, इस पर भी इंडस्ट्री ने और अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल ने अपना वर्क शुरू कर दिया है। कल ही मैं देख रहा था आईआईटी दिल्ली ने खुद एक अपनी बहुत बड़ा
आयोजन किया है पोस्ट कोविड-19 के ऊपर एक्टिविटीज को स्टार्ट करना, क्योंकि अभी तो हम उसी एरिया में चल रहे हैं। और तीसरा, आपको पता ही है कि WHO ने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है कि ये कोरोना जाने वाला नहीं है, तो आपको इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो आपको अपना पूरा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे बेहतर बनाना है, वो इसी के साथ देखना है, इसी के साथ जीना है। तो मैं अब सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता